ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور آپ نے آ کر کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ طیبہ ہم نے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس امتحان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کو تیار کیا تھا، اب وہ امتحان کا وقت قریب آتا ہے۔ جیسے گھر والوں کو یہ اطلاع مولا حسین نے دی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید بادشاہ بن بیٹھا، وہ بیعت مانگ رہا ہے، ہم ہاتھ تو دے نہیں سکتے اس کے ہاتھ میں، اس لیے کہ یزید کو امیر ماننے کے بعد اسلام کا پورا چہرہ مسخ کرنا ہے۔ یزید کا دو جملوں میں یوں تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یزید اسلام کے معاملے میں ایسی آزادی دینا چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھو اور جو جی چاہے کرو اور اس کو اسلام کے سر ڈال دو۔ اگر مولا حسین اس کی تائید کر دیتے تو پھر اسلام کا یہ چہرہ جو ہمارے سامنے ہے حقیقت، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے یہودی قائم ہے، لیکن یہودیت یعنی مذہب موسیٰ ان کے درمیان نہیں ہے، مذہب توریت ان کے درمیان نہیں ہے، عیسائیت کا نام موجود ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی حال اسلام کا بھی ہوتا کہ اسلام کا نام ہوتا لیکن سلمان رشدی جیسے گندوں کو، تسلیمہ نسرین جیسے پلیدوں کو معاذ اللہ اسلام کا ہیرو بنایا جاتا، لیکن مولا حسین نے جو احتجاج کیا ہے، آج ایسے پلید جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف، اسلام کے حقانیت میں باطل کو ملانے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی ضرور کھڑا ہوگا اور ان یزیدیوں کو وہ بتا دے گا کہ اسلام حقانیت کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کریم کی شریعت کا نام ہے۔ نہیں دیکھتے کہ جب اکبر کلمہ طیبہ تو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس نے وقت کا یزید بننے کی کوشش کی تو پھر کسی کے سامنے حسین کی سیرت موجود تھی کہ اگر حکومت وقت اسلام کے اندر باطل نظریات کو ملائے گی تو کسی نہ کسی کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہوگا، اپنی طاقت نہیں دیکھنی ہوگی، اپنی قوت نہیں دیکھنی ہوگی، اسباب پہ نظر نہیں کرنا ہوگا، مسبب الاسباب کے بھروسے، مدینے والے کے بھروسے حق کو لے کر کھڑے ہونا ہوگا۔ کٹیں گے لیکن جیت حقانیت کی ہوگی۔ تو جب اکبر اس ہندوستان کا، جس کو لوگ اکبر اعظم اور مغل اعظم کہتے ہیں، جب وہ کھڑا ہوا کہ سارے مذاہب کی کھچڑی بنائی، مشرکین کے تہوار میں بھی جاؤ، پھر معاذ اللہ تعالی پھر جو ہے وہ ہاتھوں میں جو باندھنے کے تہوار ہے وہ بھی باندھو، کشکا بھی لگاؤ اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، یعنی کہ با مسلمہ اللہ اللہ با پرہمن رام رام، مذہب کو یوں بنا دیا چوچو کا مربع۔ تو اس وقت حسین سے نسبت رکھنے والا وہ فاروق اعظم کا شہزادہ جسے دنیا شیخ احمد سر ہندی فاروقی کہتی ہے، جس کو لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، حسین کی سنت کو زندہ کیا اور دنیا یہ کہہ رہی تھی فیضی جیسے لوگ، ابو الفضل جیسے لوگ بک رہے تھے اور کہتے تھے یہ مجدد الفسانی کہلانے والا کہاں پر سکتا ہے، احمد سرہندی حکومت سے ٹکر کیا لے سکتا ہے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا اکبر کا باطل نظریہ دم توڑ گیا اور مجدد الفسانی کی حق کی آواز آج تک ہند کے گوشے گوشے میں باقی ہے۔ تو یہ جذبہ اگر حسین بیعت کر لیتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، تو پھر مجدد الفسانی کو کون ابھارتا، مجدد الفسانی کو کون ابھارتا، شاہ عبدالعزیز کو کون ابھارتا، 14ویں صدی میں امام احمد رضا کو کون ابھارتا کہ رخصت کی راہ سب کچھ نہیں ہے، عزیمت کی راہ بھی بڑی چیز ہے۔ رخصت اور عزیمت دو راستے ہیں، ایک ہے رخصت یعنی سفر میں سنتیں معاف ہوتی ہے عام طور پر کہ آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے تو 2 فرض پڑھ لو، سنتوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ رخصت ہے۔ لیکن راہ عزیمت یہ ہے کہ 2 فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھو۔ اہل رخصت کبھی معیار نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی معیار نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی قائد نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی
लोगों के लिए मिसाले राह या मिसाल नहीं बनते, अहले अजीमत बनते हैं कि इनको देखो और इनकी राह पर चलो। तो मौला हुसैन ने यही किया। हम बैत नहीं करेंगे, उसके लिए फैसला ये कि मदीना छोड़ देंगे। घर में कोहराम मचा। जो लोग मदीना तैयबा जा चुके हैं उनको बस इतना बताना चाहता हूं कि जब टूर वाला आके कहता है कि आपकी टिकट मदीना तैयबा में फला तारीख की थी, लेकिन किसी सबब से वो तारीख की टिकट कैंसिल हो गई और आपको 2 दिन पहले जाना है वतन, दिल धक धक करने लगता है। या काफिलती जीदी अजलक रहमे बर हसरत तशना लबक मोरा जियारा लरजे दरक दरक तैबा से अभी ना सुना जाना। कहते हैं मेरे काफले मदीने में ठहरने की मुद्दत अभी तू बढ़ा, मुद्दत बढ़ा, मुझे अभी मत बोल कि तैबा से जाना है, कि ये सुनकर तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। 14वीं सदी का आशिक जब ये नजरिया रखता है, और उस्ताद ज़मान कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने में हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। ये तो आशिकों का मिजाज है जिनके दिल इश्क के लिए नहीं बल्कि नफरतों के लिए खास कर लिए गए हैं। उन्हें क्या पता कि मदीना छोड़ना क्या है। आका हुसैन ने कहा हमें छोड़ना है मदीना तैयबा, इसलिए कि मदीने में रहना ये मौला हुसैन की पसंद है, और करबला में जाकर दीन बचाना ये इमामुल अंबिया की पसंद है। आशिकों का काम है जब महबूब की और अपनी दोनों की पसंद टकरा जाए तो महबूब की पसंद को अहमियत दी जाती है, अपनी पसंद को नहीं। और हम भी आशिक हैं, अपनी पसंद है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि दाढ़ी मुंडाकर स्मार्ट बनना, लेकिन महबूब की पसंद है दाढ़ी रखकर स्मार्ट बनना। तो अपनी पसंद छोड़ दो, अगर आशिक हो तो हुजूर की पसंद को इख्तियार कर। अपनी पसंद यह है कि मेरे बाल में मांग खूबसूरत हो और मैं हसीन नजर आऊं। टोपी भी पहनते तो ऐसे धीरे धीरे पहनते हैं कि सर की मांग बिगड़ना न चाहिए। हंसने की बात नहीं है, जो अपनी मांग नबी के नाम पे नहीं बिगाड़ सकते वो लोग नबी के नाम पे जान क्या दे सकते हैं। किस इश्क रसूल की बात करते हैं लोग। लोगों हुसैन जैसी इश्क करने की कोशिश करो, उस जैसा इश्क तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनकी नकल तो करो। अपनी पसंद को हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दो और बता दो आका जो आपकी पसंद है वो हमारी पसंद है। गजलें हम सुने, गाने हम सुने, हमारे घरों के अंदर फिल्मों का मिजाज, गंदगी फिल्मों की। हमारा हाल ये है कि मालेगांव गुंबदों मीनार का शहर कहलाता है, उसके बावजूद भी ईद पर जितनी थिएटरें मालेगांव की भरी होती है शायद किसी और की। गैर मुस्लिमों का हाल ये है, वो हफ्ते में 1 दिन फिल्म देखने जाते हो। मुसलमानों तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे हफ्ते भर जो है वो फिल्म खाने भरे होते हैं। जरा सोचो तो सही, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या इसी दिन के लिए मैंने कांटों पर चला था, इसी दिन के लिए ताइफ की वादियों में मैंने पत्थर खाए थे, और मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। लोगों अपनी अमाल की इस्लाह करो। करबला वालों को देखो, उन्होंने अपने दीन को कितना कीमती जाना, अपने मजहब को कितना कीमती जाना। घर वालों से कहा तैयारी करो। अब अजीब, नबी के घर के अंदर एक कोहराम है, सामान बंध रहे हैं, सामान बांधे जा रहे हैं। उसी आलम के अंदर कोई कभी अपने कपड़े समेटता है, कोई तैयारी करता है, आंसू बह रहे हैं। कोई चुपके अपने दुपट्टे से आंसू पोंछता है, कोई चुपके अपनी अमामे के शमले से आंसू पोंछता है। लेकिन कोई मौला हुसैन को नहीं कहता हुसैन न जाना, इसलिए कि वो दिन आ रहे हैं शहादत के जिसकी रसूल ने खबर दी थी नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के दीन को अजीज रखते थे। इसी आलम में फिर यूं होता है कि मदीने तैयबा में रसूल की कब्र अनवर को सलाम करके सूरज गुरूब हो जाता है। 3 शाबान का सूरज गुरूब होता है, 60 हिजरी का, और 14वीं का चांद
4 तारीख का चांद मदीने तैयबा में मज़ार रसूल को सलाम करने के लिए तुलू होता है। ऐसे में फिर धीरे धीरे रात अपनी सियाह जुल्फों को अहले मदीना पर बिखेरने लगती है और फिर वो वक्त आता है कि मदीने वाले कुछ अपने मुसल्ले बिछा लेते हैं और नबी की सुन्नत के तौर पर अपने घरों में अल्लाह को मनाने के लिए आंसुओं की सौगात पेश करते हैं। ऐसे में रात ढलती चली जाती है और जब रात का आखिरी पहर आने लगता है तो चश्मे तसव्वुर में जब मैं मदीने तैयबा पहुंचता हूं 4थी शब में शाबान की 60 हिजरी की, तो मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरा विजदान फिर इन चीज़ों को तसव्वुर में लाता है जहां आप भी पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। जब मदीने वाले इबादतों से थक कर अपने बिस्तर पर सो चुके, सितारे चमकते चमकते थक चुके और रात की सियाह जुल्फों ने गहरे डेरे डाल दिए, मदीने तैयबा में अदब के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। सबके घर बंद थे। अगर घर खुला था तो एक खानदान का, जिसे खानदाने बनु हाशिम कहते हैं। हाँ, किसी के घर में अगर चिराग जल रहा था तो एक खानदान का जो नबी का खानवादा था। ऐसे में उस खुले हुए दरवाजे से एक कमोबेश 55 साल और कुछ महीने की 55 साल और कुछ महीने की उम्र का एक शख्स निकलता है, जिसकी दाढ़ी इस उम्र में भी सियाह और काली थी। इतना हसीन था वो कि जब उसने बाहर कदम निकाला तो उसके चेहरे से नूर की वो किरणें निकली कि यूं लगता था जैसे किसी ने सियाह रात में अचानक चांद को जमीन पे उतार दिया हो या किंदिल रोशन कर दी हो। वो अपने ही चेहरे की रोशनी में चलते चलते बोझल कदमों से, गम से निढाल जन्नतुल बकी में जाता है। कुछ लोगों ने पहले दरे रसूल का जिक्र किया है, बाज मौर्रिखीन ने पहले जन्नतुल बकी का जिक्र किया है। उसी जवान को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। हुसैन इब्ने अली है। वो जवान जैसे ही जन्नतुल बकी में कदम रखता है, सामने ही उसकी प्यारी प्यारी अम्मी की कब्र थी। वो माँ की कब्र देखकर सब्र रजा का जो मुजस्सम था, हिल्म और हिकमत का जो पैकर था, माँ की कब्र को देखकर उसे अपना बचपना याद आया। शायद उस जवान को वो रात याद आई। आज 4 शाबान है, 4 शाबान की शब है। उसको 3 रमजान की वो रात याद आ गई। कौन सी रात? जब उसकी प्यारी प्यारी अम्मी, जिसको रसूल ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा था, उसकी प्यारी प्यारी अम्मी